تو آپ اگر یہ ڈسکرپشن کو دیکھیں گے تو بریدرن بھائیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور عربز و اسرائیل، یہ آپ دیکھ سکتے ہو عربز و اسرائیل، تو ان کے جو بریدرن رشتہ داروں میں کون ہے؟ جو بنو اسماعیل یعنی کہ عرب ان کے رشتہ داروں میں سے ہے. ہاں، اور دوسری چیز کیا دیکھ جی آپ سن رہے ہیں زید پٹیل کے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ اللہ، قرآن اور محمد کے خلاف ہے. جتنے جھوٹ زید پٹیل اس کلپ میں بولے گا، میں آپ کو اس کا ایک کانٹینیوس کلپ ہے 2 منٹس اور تقریباً 17 سیکنڈز کا، اس میں روک روک کے میں آپ کو ایک ایک جھوٹ اس کا ایکسپوز کروں گا. اس ایک ایک جھوٹ میں بھی ملٹیپل جھوٹ ہے، کاؤنٹنگ کرنی مشکل ہے. 2 منٹ 17 سیکنڈ میں اس بندے نے کتنے جھوٹ بولے ہیں. کوشش کریں گے اینڈ میں ہم ان کو کاؤنٹ کر سکیں. اگر آپ کی گنتی اچھی ہے تو آپ کاؤنٹ کر کے ایوریج نکال سکتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ میں زید پٹیل نے جو ایکس مسلم سمیر کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے محمد کے ٹاپک کے اوپر کہ کیا محمد سچا نبی ہے اور رسول اللہ ہے، اس ٹاپک کے اوپر اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، اس کی ایوریج آپ اس کلپ سے نکال سکتے ہیں کہ اس نے 2 منٹ 17 سیکنڈ میں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سارے جھوٹ اللہ، قرآن اور محمد کے خلاف جاتے ہیں، کسی کے خلاف نہیں جاتے. تاریخی جھوٹ، اتنے جھوٹ میں نے کبھی سنے ہی نہیں، اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو وہ ابھی جو آپ نے جھوٹ اس کا پہلا سنا ہے، ایکس مسلم سمیر نے محمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے قرآن کا ایک دعویٰ پیش کیا کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں ذکر ہے. اب اس کے لیے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا پچھلی کتابوں میں محمد کا ذکر کہاں پر ہے سچائی کے ساتھ. لیکن اس نے ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 اور 19 جو مسلمانوں کی سب سے لگتا ہے فیورٹ ورس ہے، اور اس سے وہ محمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے اپنی پہلی دلیل کیا دے رہا ہے جو اس نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، تو لہٰذا اسماعیل میں سے عرب اور محمد اور اسحاق میں سے اسرائیل. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں اس کو ایک جھوٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں، اس میں اس ایک جھوٹ میں ملٹیپل جھوٹ ہے. اس بندے کو پوچھیں کہ ہمیں بتا دے قرآن میں سے اسرائیل کا مطلب کیا ہے، بنی اسرائیل کون ہے، اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے. وہ اس کتاب کو جس کا اس نے ریفرنس استعمال کیا ہے، اور جب ایکس مسلم سمیر نے کہا اس آیت کی جو تم بائبل میں سے دے رہے ہو اگلی پچھلی آیتوں کو بھی تو پڑھو یا مانو، تو اس نے کہا نہیں، میں چیری پک کروں گا، میں صرف ایک آیت یا آدھی آیت کو مانوں گا، باقی کو میں چینج ہوا سمجھوں گا، کیونکہ باقی اگلی پچھلی آیتیں ان کے خلاف جاتی ہیں. میرا دعویٰ یہ ہے، چونکہ یہ بائبل کو اس نے کہا ہے میں نہیں مانتا، لیکن پھر بھی اس میں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بائبل پوری ایک سائڈ پہ کر دیں، نیا عہد نامہ پرانا عہد نامہ نہ دیکھیں. پرانے عہد نامے میں جو ریفرنس اس نے جس کتاب میں سے دیا ہے ڈیوٹرانومی کی، صرف اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس ایک کتاب میں تمہارے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل، تمہارے بھائیوں میں سے کن کو کہا جا رہا ہے. 40 سے زیادہ 40 سے زیادہ ریفرنسز ڈیوٹرانومی میں ہیں کہ بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں. تو موسیٰ کی مانند نبی ان قبیلوں میں سے، ان 12 قبیلوں میں سے ہونا ہے. اب محمد کو اس میں فٹ کرنے کے لیے زید کو ماننا پڑے گا کہ محمد جو ہے اس کا باپ کوئی اسرائیلی تھا یا یہودی تھا. ویسے تو آپ جانتے ہیں بڑا اختلاف ہے محمد کے باپ کے نام کے اوپر. کوئی عبداللہ کہتا ہے، کوئی عبداللات کہتا ہے، کوئی عبد المطلب کہتا ہے، کوئی نامعلوم کہتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر زید پٹیل جیسا اسلامی اسکالر، امی نبی کا امی اسکالر
अगर मोहम्मद के बाप को बेंजामिन नेतन्याहू कह दे, सिर्फ इसलिए कि उसको नबी साबित करना है। तो मेरा दावा यह है कि ये जो इसने पहला पॉइंट पेश किया है मोहम्मद के नबी होने को साबित करने के लिए बनी इस्माइल में से, मैं चैलेंज करता हूं कि कुरान में से ये बता दे, दिखा दे कि बनी इस्माइल में से मोहम्मद है। मेरा चैलेंज है। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं अगर ये कुरान में से दिखा दे तो। नहीं तो जिस किताब का जिक्र कर रहा है उसमें 40 से ज्यादा मर्तबा उसी किताब ड्यूटरोनॉमी में, नया अहदनामा पुराना अहदनामा छोड़ दें, अगले पिछली आयतों से तो ये इनकार कर रहा है, लेकिन तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारी मानिद बनी इसराइल के 12 कबीले हैं। एक मर्तबा भी उस किताब में, ड्यूटरोनॉमी की किताब में, बनी इस्माइल को भाइयों में से नहीं बयान किया गया। कम से कम जिस किताब का रेफरेंस दे रहे हो उस किताब को ही मान लो। तो मेरा चैलेंज है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं अगर ये कुरान में से दिखा दे कि मोहम्मद बनी इस्माइल में से है। मैं साथ इसको $5000 भी दूंगा। तो ये इन मल्टीपल झूठ पर मुश्तमिल इसका मैं ये पहला एक झूठ काउंट कर रहा हूं आपके सामने, और अभी आगे कितने झूठ पे झूठ आने हैं वो देखते हैं। और मैंने कहा है कि ये अल्लाह मोहम्मद और कुरान के खिलाफ जा रहा है। इसने क्या किया है? खोता ही खूंच पा देता है। जिस ज़ैद पटेल गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब मैं कुरान में से इसके हर एक पॉइंट को गलत साबित करूंगा तो ये मुर्दा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। गो के उम्मी नबी का उम्मी चेला ज़ैद पटेल मोहम्मद को नबी साबित करने के लिए मोहम्मद को बनी इसराइल में से भी बना देगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, और दूसरी चीज क्या देख रहे हैं आप कि कुछ लोग ये कहते हैं ये जीसस क्राइस्ट के बारे में पेशन गोई है, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं हो सकती। इसके कई रीजंस है कि आप ये देख सकते हैं। ज़ैद पटेल ने फिर कुरान पर तोहमत लगा दी है और अल्लाह को झूठा बना दिया है, क्योंकि कुरान के मुताबिक, क्योंकि अब हमने बाइबल की बात तो करनी नहीं है, क्योंकि बाइबल से हवाला देंगे तो इन्होंने मानना नहीं है। कुरान के मुताबिक मूसा की मानिद नबी होते हुए मसीह की जात के अलावा कोई और जात है ही नहीं जो मूसा की मानिद है। ये मोहम्मद को फिट करने की कोशिश करते हैं। मेरी वीडियो है इंग्लिश में, पुरानी वीडियो है, इतनी अच्छी उसमें एडिटिंग नहीं है, वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई कहेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में उसके साथ शेयर कर दूंगा। 60 से ज्यादा पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं कि ये मूसा की मानिद मोहम्मद क्यों नहीं है और मसीह की जात नबी होते हुए कैसे मूसा की मानिद है। 60 से ज्यादा पॉइंट्स मैंने शेयर किए हुए हैं उस वीडियो में। तो ये मुर्दा आज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, और मोहम्मद को जो ये फिट करने की कोशिश करते हैं वो भी कुरान के खिलाफ है। अल्लाह और कुरान को कितना झूठा बनाओगे? मोहम्मद के पास कोई मौजज़ा नहीं कुरान में, मूसा के पास है, मसीह की जात के पास है कुरान में, और मोहम्मद के पास क्या है कुरान में? छनकना। जब वो अंधा आया था, कुरान चैप्टर 80 वर्स 1 और 2 में, जब वो अंधा मोहम्मद के पास आया था मौजज़े के लिए, तो मोहम्मद ने क्या किया था? अपनी टूई मुबारक उसकी तरफ फेर दी थी और छनकना दिया था उसको। सो मोहम्मद के पास मौजज़ात नहीं है, मोहम्मद के पास छनकना है। कुरान के मुताबिक मेरा चैलेंज है, मैं फिर कह रहा हूं, जिस किताब को ये मानते हैं उसके मुताबिक मेरा चैलेंज है, मूसा की मानिद
कुरान के मुताबिक मसीह की ज़ात नबी है, मोहम्मद नहीं है। अगर ज़बरदस्ती ये मोहम्मद को उसके बीच में फिट करने की कोशिश करेंगे, मौजज़ात दिखा के, कोई झूठी हदीसें दिखा के, कुछ झूठी रवायात दिखा के, तो कुरान और अल्लाह उन झूठी हदीस और रवायात को छनकना दिखा देता है और इनका सारा मुद्दा टाइम टाइम फिश हो जाता है। तो ये नेक्स्ट झूठ है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ओए शादे छनकना वजा। देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके हिसाब से, ईसाइयों के हिसाब से गॉड है और मोसेस गॉड नहीं थे। उनके ये भी ज़ैद पटेल झूठ बोल रहा है कि ईसाइयों के हिसाब से जीसस गॉड है। कुरान और अल्लाह के हिसाब से भी जीसस गॉड है। कुरान 9:31 में अल्लाह मसीह को रब बयान कर रहा है, अपने बराबर, अपने साथ। इसकी दुरुस्त ट्रांसलेशन पढ़ लें, गौर कर लें, किसी से समझ लें। और कुरान के मुताबिक ही मसीह की ज़ात कलमातुल्लाह भी है, रूह मिन भी है, खुदा की रूह भी है। हमने डिवाइन जो टाइटल्स हैं मसीह के, रब, कलमा अल्लाह का, अल्लाह की रूह, इनका हमने मैच नहीं करना मूसा के नबी होने के साथ। मूसा के नबी होने के साथ जब हमने मसीह की ज़ात को देखना है तो मसीह के नबी होते हुए हमने देखना है कि क्या बातें मैच हो रही हैं। मसीह के डिवाइन टाइटल्स कुरान में भी मौजूद हैं। तो अल्लाह और कुरान भी मसीह को खुदा कहता है। लिहाजा ये ज़ैद पटेल का झूठ है कि सिर्फ ईसाई मसीह को खुदा कहते हैं इसलिए वो मूसा की मानद नहीं हो सकता। कुरान के मुताबिक मसीह की ज़ात ही सिर्फ मूसा की मानद नबी है। के लोगों के गुनाहों के लिए मरे, मोसेस नहीं मरे उनके लोगों के गुनाहों के लिए। और बाइबल के अंदर ये भी दिया हुआ है कि वो है। ये अगला झूठ है ज़ैद पटेल का। ये लोगों के या ईसाइयों के हिसाब से नहीं है, कुरान के हिसाब से भी मसीह की मौत और उनके जी उठने का जिक्र कुरान 355 में है। उसके लिए फिर करेक्ट ट्रांसलेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और ये कुफारे और कुर्बानी की मौत है कुरान 37:107 के मुताबिक। कुरान 37:107 में आपको वो रिफ्लेक्शन नज़र आता है अजीम फिदिये का, अजीम कुर्बानी का, जो मसीह की ज़ात में मसीह की मौत से उस कुर्बानी में पूरा हुआ। तो कुरान भी इस चीज़ की तायद करता है, तो तुम क्यों इससे इनकार कर सकते हो? हाँ, इसमें से मोहम्मद मूसा की मानद नबी नहीं हो सकता तुम्हारी इस दलील की रोशनी में। कैसे? मोहम्मद को मैं मक्खी की तरह बीच में से निकाल देता हूं। कुरान 69:46 के मुताबिक मोहम्मद की मौत सजा की मौत है। और वही वर्स कुरान 69:46 मोहम्मद को झूठा नबी भी साबित करती है। तो मोहम्मद मूसा की मानद नबी नहीं है। और यह एतराज, और अब मसीह की ज़ात मूसा की मानद, मसीह की जिंदगी, ज़मीनी जिंदगी और मौत मूसा की जिंदगी और मौत के साथ कैसे मैच करती है? मूसा बनी इसराइल को फराऊन और मिस्र की गुलामी से आज़ाद करता है, और मसीह की ज़ात अपने कुफारे, अपनी कुर्बानी, अपनी मौत के साथ इंसानियत को शैतान और मौत से रिहाई दिलाती है। यह है मसीह की ज़ात का नबी होते हुए मूसा की मानद होना। बाइबल के अंदर ये भी दिया हुआ है कि वो हेल के अंदर 3 दिन के लिए। ज़ैद पटेल, ये भी तुमने मसीह की ज़ात के लिए झूठ बोला है। इसका रेफरेंस बाइबल में से दो, नहीं तो तौबा करो, माफ़ी मांगो। तुम्हें तो वैसे ही मोहम्मद को बचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो मोहम्मद ने अपने ज़माने में अपने बेटा होने से बेदखल कर दिया था, और तुम्हें पता है क्यों कर दिया था। तुम उस झूठे नबी को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसने ज़ैद की
बीवी ज़ैनब पे बुरी नज़र रखने के चक्कर में और शादी और धाबर धूस करने के चक्कर में अपने बेटा होने से एक्सपेल कर दिया। यार ज़ैद, तुम उस नबी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, शर्म करो। हाँ, वो नबी कुरान 1972 के मुताबिक मोहम्मद रॉन्ग डूअर होते हुए हेल में है। तो ये तुम्हारा पॉइंट भी झूठा साबित हुआ कुरान के मुताबिक। और 8 और चीजें हैं कि वो जीसस क्राइस्ट की तरह नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर मदर थे, जीसस क्राइस्ट के मिरेकुलस बर्थ थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉर्मल बर्थ थी, मूसा अलैहि सलाम की नॉर्मल बर्थ थी। दोनों ने मैरिजेस की। जीसस के पैगाम को लोगों ने रिजेक्ट किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा दोनों के पैगाम को एक्सेप्ट किया। दोनों को वर्ल्डली किंगडम हुआ, जीसस का वर्ल्डली किंगडम नहीं है बोलते हैं। दोनों ने न्यू लॉज लाए, मोसेस और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जीसस क्राइस्ट ने न्यू लॉज नहीं लाए। दोनों की नॉर्मल डेथ थी, जीसस क्राइस्ट की नॉर्मल डेथ नहीं, उनको रेज अप अलाइव हुआ, क्रिश्चियंस के हिसाब से वो क्रॉस पे मौत हुई। और हेवनली अबोर्ड के बारे में जो हम मानते हैं कि वो अभी वो आसमानों में हैं, आएंगे वो मौत से, क़यामत से पहले। तो ये देखते हैं पेशेंट गोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे परफेक्ट मैच हो रही है। और जो वर्ड जी, इन 8 झूठों को मैं एक साथ इसके रिफ्यूट करने लगा हूं, सिर्फ इतना कह के कि इन 8 पॉइंट्स के साथ जो इसने मोहम्मद की मैचिंग करने की कोशिश की है मूसा की मानिद, और मसीह की ज़ात को साइड पे करने की कोशिश की है कुरान में से, इनमें से इन सब का रेफरेंस दे दे। मैं आपको बता रहा हूं, इसकी यहीं पे ही गेम ओवर हो जाएगी और मोहम्मद इसके इन 8 दावों में, झूठे दावों में, मोहम्मद ऐसे निकल जाएगा जैसे मक्खन में से आप बाल निकालते हैं, ऐसे मोहम्मद बीच में से निकल जाएगा। फादर एंड मदर, ओ मूसा के माँ बाप का जिक्र कुरान में है, मसीह की माँ का जिक्र कुरान में है, और कुरान 345 के मुताबिक मसीह के आसमानी बाप का जिक्र कुरान में है। वो बाप में से निकल के आया है, कलमा अपने मुतकल्लम खुदा में से निकल के आया है कुरान 345 के मुताबिक। तो मूसा के भी माँ बाप का जिक्र है, मसीह के भी माँ बाप का जिक्र है, और मोहम्मद के माँ बाप का जिक्र ही नहीं है कुरान में, क्योंकि वो दोनों जहन्नमी हैं। तो मोहम्मद कैसे मोहम्मद और मोहम्मद के माँ बाप की निस्बत मूसा के माँ बाप की निस्बत के साथ बन गई? मिरेकुलस बर्थ, मोहम्मद की तो बर्थ का ही जिक्र नहीं है यार। तौबा करो ज़ैद, तौबा करो। और अगर कहीं जिक्र ढूंढोगे तो मोहम्मद की तो ऐसी शानदार मिरेकुलस बर्थ है कि अपने बाप के मरने के 4 साल के बाद पैदा हुआ है। यार बेतुकी बातें नहीं करनी। और मैरिज टाइज, लो जी, मैरिज टाइज मुझे दिखा दे मूसा ने 6 साल की बच्ची से शादी की है। अच्छा जी, अगला चौथा पॉइंट क्या है जी? जीसस रिजेक्टेड बाय हिज पीपल। फिर ये कुरान की तौहीन कर रहा है, अल्लाह की तौहीन कर रहा है। कुरान 355 के मुताबिक मसीह के फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं दुनिया में, और मसीह के फॉलोअर इसी आयत के मुताबिक सुपीरियर भी हैं। तो उसके लोगों ने कैसे उसकी रिजेक्शन कर दी? उसके तो सबसे पहले मानने वाले ही उसके अपने लोग थे, यहूदी थे, इसराइली थे। लो जी, 5वां पॉइंट है अदर वर्ल्डली किंगडम। मसीह की जात की किंगडम सबसे बड़ी है, उसके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं कुरान के मुताबिक। कुरान 355 के मुताबिक वो सुपीरियर भी हैं और वो दिलों पे हुकूमत करता है। मोहम्मद क्या है? मोहम्मद तलवार के जोर पे खड़ा है। ऐसी हुकूमत मूसा ने, ऐसी बादशाहत मूसा ने नहीं की। ये तुम्हारा पॉइंट भी ठुस हो गया है। नो न्यू लॉज, जीसस ने नो न्यू लॉज। क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते कि उसने बहुत सारी चीजों को हलाल किया? ज़ैद, तुम अल्लाह और कुरान की तौहीन सिर्फ कर रहे हो। अल्लाह और कुरान को तुम झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अल्लाह और कुरान ने तुम्हारे हर एक पॉइंट को झूठा साबित कर दिया है। हाँ जी, अगला पॉइंट है हाउ दे डिपार्टेड। मसीह की जात तो मुकाम महमूदा पर है, ठीक है। मूसा मसीह के जी उठने के बाद, मसीह पहला फल, और उसके बाद ईमानदार, रास्तबाज और नबी
उसके साथ जी उठे। और मोहम्मद कहां पर है? मोहम्मद की मौत सजा की मौत। मोहम्मद अपनी कब्र में मौजूद है, जहां जाके तुम ज़ियारतें करते हो। सो मुर्दा को जिंदा के साथ मिलाने की कोशिश ना करो। मोहम्मद मूसा की मानिद नबी नहीं है। दिया गया था वो मुझे मुसलसल तकलीफ देता रहा है, लेकिन अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। जी, रगें काट रहा है। जी जैद पटेल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मोहम्मद की नॉर्मल मौत कैसे है? कुरान के मुताबिक, कुरान 69:46 के मुताबिक ये मोहम्मद की मौत जो जहर से हुई है, शहरक कट रही है, ये सज़ा की मौत है। तो मोहम्मद मूसा की मानिद नहीं है। तुमने ना सिर्फ अल्लाह, मोहम्मद और कुरान को, पूरे इस्लाम की कुटिया को डुबो दिया है। से पहले तो ये देखते हैं पेशन गोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे परफेक्ट मैच हो रही है। और जो वर्ड्स देखोगे, पुटिंग माय वर्ड्स इन हिज माउथ, तो ये चीज भी आपको पूरी तरह से मिलेगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गार हिरा में कहा गया इकरा, और उन्होंने कहा मा अना बिकारीन, और किस तरह से उनके मुंह में वो अल्फाज डाले गए, परफेक्टली मैच होता है। और जो मैं कहूंगा, जो मैं हुक्म दूंगा, वो कहेंगे, तो ये चीज भी परफेक्ट मैच होती है। और ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18 वर्स 19 में आता है, and shall pass that whoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name I will require it of him। जो अल्फाज वो मेरे नाम में कहेंगे, जो वो बातों को नहीं मानेंगे, मैं उनकी गिरफ्त करूंगा। तो इन माय नेम, आप खोल के देख लो, इन माय नेम कौन सी किताब है दुनिया में? बिस्मिल्लाह से शुरू होने वाली कौन सी किताब है? इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ गॉड, कौन है? तो कुरान है, जो हर सूरा एक्सेप्ट सूरह तौबा। आपका टाइम लगभग पूरा हो गया था। जी, आपने देखा 2 मिनट 17 सेकंड में। मेरा अंदाजा है, मैंने काउंटिंग नहीं की, कोई करना चाहता है तो कर ले। 20 से भी ज्यादा जैद पटेल ने झूठ बोले हैं, और इसमें जो झूठ बोले हैं इनको भी मैं एक क्लिप में ले आया हूं, क्योंकि सबको अलग-अलग करके बयान करने से वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। ये कह रहा है कि पुटिंग वर्ड्स इन माउथ। हम जानते हैं मूसा कलीमुल्लाह और मसीह की जात कलमतुल्लाह, इनकी निस्बत बनती है। मूसा कलीमुल्लाह कहलाया क्योंकि खुदा ने मूसा के साथ डायरेक्ट बात की। मसीह कलमतुल्लाह होते हुए मसीह की जात भी डायरेक्ट खुदा के साथ, अपने मुतकल्लम के साथ डायरेक्ट है, फेस टू फेस है। मेरा चैलेंज है जैद पटेल से, $1 मिलियन क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि पूरे कुरान में से दिखाए कि मोहम्मद ने डायरेक्ट अल्लाह के साथ बात की है, या अल्लाह ने डायरेक्ट मोहम्मद के साथ बात की है, कोई विचोला नहीं पाया। तो मोहम्मद मूसा की मानिद नबी नहीं हो सकता। जैद, झूठी बातें बनाना बंद कर दो, बच्चों वाली बातें करते हो तुम। और फिर इकरा तो लफ्ज ही सबसे पहली गलती है। या तो उसे अनपढ़ जाहिल कहना छोड़ दो। जब तुम कहते हो वो पढ़ लिख नहीं सकता और पहला लफ्ज ये इकरा जी पढ़, तो वहीं पे तुम सारे इस्लाम को तबाह करके, बर्बाद करके, इस्लाम की इमारत को जो है वो मलबे का ढेर बना देते हो। और फिर तुम कह रहे हो कि जी बिस्मिल्लाह, कौन सी किताब है जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती है? मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया के जितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं कुरान के, अरबी के, उसमें से मुझे दिखा दो कि बिस्मिल्लाह कुरान की पहली आयत है। तो जैद पटेल, तुमने झूठ का सहारा लेके एक झूठे नबी को बचाने की कोशिश की है, उससे कोई फायदा नहीं मिलने का। मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि तुम्हारे मैं इन झूठों को एक्सपोज कर सकूं। हाँ, अगर तुम मोहम्मद को बाइबल में ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें रेफरेंस देता हूं, मोहम्मद कहां पर है, वहां पर मोहम्मद को देखो। परफेक्ट मैचिंग है। कुरान के रेफरेंसेस निकाल लो, मोहम्मद के किरदार को निकाल लो, तुम्हें मोहम्मद उस बाइबल के रेफरेंस में मिल जाएगा। जितनी मैचिंग तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, मूसा की मानिद मोहम्मद, उसी तरीके से मैं तुम्हें रेफरेंस बाइबल का देने लगा हूं।
उसके ऊपर रिसर्च करो, नहीं तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं उसका कमेंट सेक्शन पे पिन करके लिंक छोड़ रहा हूं, तुम्हें पता चल जाएगा कि बाइबल में मोहम्मद का जिक्र कहां पर है। इसके साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूं। झूठ हमेशा के लिए नहीं है, झूठ नहीं चल सकता, झूठ का पर्दाफाश होना होता है। और मैं दुआ करूंगा हर मुसलमान के लिए कि वो झूठ में से बाहर निकल आए, इस्लाम में से बाहर निकल आए और सच्चाई को कबूल करे। जी, मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके टॉप कमेंट छोड़ रहा हूं वीडियो लिंक के साथ। मेरी वीडियो है कुरान और हदीस के रेफरेंसेस के साथ कि मोहम्मद की परफेक्ट मैचिंग बाइबल में, अगर मोहम्मद का जिक्र बाइबल में है तो बाइबल की कौन सी आयत, वो एज़ेकियल 23 चैप्टर 23 और वर्स 20 है, जिसमें हजरत मोहम्मद का जिक्र परफेक्ट मैचिंग के साथ मिलता है। आप कुरान और हदीस के रेफरेंसेस इसके साथ देखना चाहते हैं तो उस वीडियो पे जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। याद रखें कि जब कुरान कहता है कि मोहम्मद का जिक्र बाइबल में मिलता है, तो बाइबल में जहां कहीं आपको गुनाह की तस्वीर नजर आएगी, बुराई नजर आएगी, झूठे नबी की खुसूसियात नजर आएंगी, उसमें आप मोहम्मद का जिक्र देख सकते हैं। इन शॉर्ट, ज़ैद पटेल आपके लिए मेरी नसीहत है, हर एक मुसलमान के लिए जो सुनने वाला है, अगर आप मोहम्मद को बाइबल में ढूंढना चाहते हैं तो वो आपको मोहम्मद का जिक्र परफेक्ट मैचिंग के साथ एज़ेकियल 23:20 में मिलेगा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।